हेलो एवरीवन। सो गाइज आज 18 नवंबर 2020 है। 14 नवंबर 2020 को दिवाली सेलिब्रेशन था। तो दिवाली के बाद ये क्या हो गया, 14, 15, 16, 17, 18 ये चौथा दिन है। तो आज से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है गाइज। आज के दिन को यहाँ पर कहा जाता है नहा खा। नहा खा इट मीन्स लाइक यू हैव टू टेक अ बाथ, ओके, एंड ईट फूड। दो एवरीबॉडी डज दिस, बट जो व्रत करते हैं, जो व्रती लोग हैं, उनका आज नहा खा है, क्योंकि आज जो है जो खाना खाएंगे वो बहुत ही सात्विक फूड होता है। आज कद्दू की सब्जी, कद्दू मीन्स बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड वेजिटेबल इज़ मेड। तो कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, चावल होता है, इसमें लहसुन प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है, और पूरे घर के लिए यही खाना बनता है और ये खाना खाना है। और कोई चाहे तो इसमें पकौड़ा वगैरह भी बनवा सकता है, खा सकता है। तो ये प्रोसेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कद्दू भात का पहले प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे इस तरीके से होगा। तो चलिए देखते हैं कद्दू भात प्रोग्राम। So guys, as you can see that bottle guard is being peeled off. So guys, आज के खाने में जो नमक है वो व्रत वाला नमक यूज़ होगा। तो आप देख सकते हैं कि व्रत वाला नमक डाला जा रहा है। So guys, as you can see this सात्विक फूड, ये राइस है और ये है बॉटल गार्ड वेजिटेबल। इसको यहाँ पर कद्दू की सब्जी, और बहुत ज़्यादा चले जाएं तो कदुआ। तो कदुआ और भात है। ये चावल मतलब भात है, और ये दाल है, चने का दाल है। तो ये सात्विक फूड है, इसके अंदर कोई भी लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है, व्रत वाला नमक यूज़ किया गया है। तो सात्विक फूड आज सबको खाना है। हाँ गाइस, सो गाइस, दिस इज द सेकेंड डे ऑफ छठ पूजा विच इज कॉल्ड खरना। ऑन दिस डे व्हाट हैपेंस, आई एम टेलिंग यू, the devotees observe fast for the entire day, and in the evening after sunset kheer roti is made. I can show you guys here. You can see here, see kheer is being made here. You can see kheer is being made, chapati is being made, you can see. So the devotees worship their Kul Devta and Chhati Maiya, and they break their fast by eating this kheer and roti. They offer kheer roti to the Kul Devta, and after that they eat, and rest of the people, the family members and whoever comes on that day, they also have to take kheer roti as prasad. And next day, the whole day they have to observe fast, and in the evening they have to worship the sunset, which is called Sandhya Arag. So I will let you know about all the things. So it's Kharna today, so I'm going to show you what is going on this day, guys. Guys, as you know that for Chhat Puja, people go to any river. On the bank of the river, they celebrate that puja and all, and they have to step into the river and look at the sun and worship. This is the whole procedure, So since my mother is not keeping well, so she cannot go to the river, she cannot perform over there. So here at my farm, what we are going to get done is, here you can see this guy, he is going to dig a ditch here. So here we will pretend as if this is the river, and here water will be put, and my mother will enter there and worship the sun. So man changa to kathauti mein Ganga. So this is going to be done here.
सो ठीक है, आप लाल मोहन आप शुरू कीजिए। यू कैन सी दिस डिश हियर। सो यही छोटा तालाब यहाँ पर बनेगा, वेयर शी कैन एंटर एंड स्टार्ट वर्शिपिंग। So guys, this is the third day of Chhath Puja, and this evening this is called Sandhya Arag. So we are going for Sandhya Arag. As you can see that I have taken this basket full of fruits and all the things are there for Arag, and the devotees go to their nearby pond or nearby river, but since my mother is ill, so we are not going to the river, so we are going to our farm where my dad has made a pond. So there this puja and everything will be performed, guys. So follow me, guys. चलो आगे आगे चलो। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आज छठ पूजा का आज तीसरा दिन है, थर्ड डे है। मुझे लगता है मुझे आज हिंदी में ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्रत में हिंदी ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। तो चलेगा, हिंदी में ही आज बात करते हैं। तो जो तीसरा दिन है, तो कल खरना था जो दूसरा दिन था, तो आपने देखा कि पूरे दिन के व्रत के बाद शाम को खरना किया जाता है, यानी कि शाम को खीर रोटी के साथ वो व्रत को तोड़ा जाता है। उसके बाद वो खीर रोटी खाने के बाद पूरी रात कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। फिर आज जो तीसरा दिन है, आज पूरे दिन से अभी शाम हो गया है, कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है, और शाम को डूबते हुए सूरज की पूजा की जाती है, डूबते हुए सूरज की। तो घाट पर जाया जाता है, जो भी आसपास कोई नहर हो, तालाब हो, नदी हो, वहाँ पर जाकर वहाँ एक घाट सजाया जाता है, अपना अपना एरिया ऑक्यूपाई किया जाता है कि ये मेरा एरिया है, और यहाँ पर वो जमा होते हैं, पूरी फैमिली जमा होती है वहाँ पर। इस तरह के जो आप बास्केट देख रहे हैं, जो टोकरी देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ गाइस। अगर आप छठ पूजा नहीं जानते तो ये डिटेल बतानी ज़रूरी है, नहीं तो ऑलमोस्ट पता ही होता है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, टोकरी देख रहे हैं, तो इसके अंदर सब फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, इस तरह से फल वल होते हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा है और जितना उनके पास है करने के लिए। कोई बहुत सारा फ्रूट भी रखते हैं, बट कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, जैसे कि बनाना हो गया है, नारियल हो गया है, गागल है, ये सब अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। गन्ना की बहुत वैल्यू, तो गन्ना ये सब ये चाहिए ही चाहिए। तो इसे ये तो टोकरी हो गया, इसको सूप कहा जाता है। तो बांस का भी सूप होता है, बट कई लोग हर साल यूज़ करते हैं, तो सोचते हैं कि चलो पीतल का ले लेते हैं ताकि हमेशा यूज होता रहेगा। तो ये इसको यहाँ पर दौरा कहा जाता है, दौरा। ओके, तो ये उस घाट पर जो घाट सजाया जाता है वहाँ ये रखा जाता है। फिर शाम को सूरज डूबने से ठीक पहले जो व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं, जो पुरुष है, जो भी करते हैं, पुरुष भी करते हैं, तो वो उस घाट में यहाँ पर मतलब वो पानी में जाते हैं, उस तालाब में या नदी में, जो भी वहाँ जाते हैं। जैसे यहाँ हमने एक छोटा सा तालाब बनाया है, तो इसके अंदर मेरी माता श्री है, वहाँ बैठी हुई हैं, तो वो इसके अंदर एंटर होंगी। मेरी वाइफ है जो इस घाट को सजा रही है। ओके, अब क्या करें, करना ही है यहाँ पर ऐसे भी, क्योंकि हम नदी में गए नहीं वहाँ पर, बिकॉज़ कि मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है और कोरोना वगैरह का भी डर है, तो जितना भी भीड़ से दूर रहा जाए वही करना चाहिए। तो हेल्थ इश्यू उनको है, इसलिए नहीं ले गए कि भाई जिनको पहले से हेल्थ इश्यू है उनको थोड़ा और बच के रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। तो आप देख रहे हैं, तो ये सब होगा। उसके बाद वो यहाँ खड़ी होंगी इसके अंदर, और डूबते हुए सूरज की पूजा होगी और अर्घ दिया जाएगा। इसको संध्या अर्घ कहा जाता है। तो ये जो भी आप ये सूप देख रहे हैं, तो इसमें फ्रूट्स वगैरह डाल करके वो सूप उनके हाथ में दिया जाएगा, और वो इस तरह से वर्शिप करेंगे, परफॉर्म करेंगे। आप देख ही लेंगे आगे। फिर इसके बाद फिर पूरी रात कुछ नहीं खाना है, कुछ नहीं पीना है। सुबह बहुत जल्दी सुबह आना है, सूरज उगने से पहले आना है, और यही प्रक्रिया होगी। उसी घाट पर दोबारा जाना है,
और वैसे ही वो दौरा रखा जाएगा, लोग बैठेंगे, गीत वीत गाएंगे और उसके बाद फिर जो व्रत करने वाले लोग हैं वो उस नदी में या तालाब में या जो भी उन्होंने बनाया है उसमें जाएंगे और फिर उगते हुए सूरज की पूजा होती है। जब सूरज उग जाएंगे, सूर्यदेव उग जाएंगे तो वहाँ पर वो जो फास्ट है वो ब्रेक हो जाता है। तो सोचिए कितना लंबा फास्ट होता है छठ पूजा के अंदर, और कितने दिन हो गए, नहा खा हो गया, खरना हो गया, उसके बाद ये जो तीसरा दिन है संध्या अर्घ ये, और जो चौथा दिन है वो सुबह सुबह जो अर्घ दिया जाता है। तो ये 4 दिन हो गए। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा सब कुछ, अगर आप नहीं जानते हैं छठ के बारे में। तो ऐसे छठ मनाया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे होता है ये। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, सिर्फ मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरे पिताजी है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो माता श्री अकेले ही गीत गा रही, इतना फास्ट रखने के बाद, और मेरी वाइफ को अभी ये सब गीत वीत आता नहीं है तो साथ भी नहीं निभा पा रही है। नहीं तो ऐसा नहीं होता है, जैसा आप देख रहे हैं ऐसा नहीं होता है। जब घाट पे जाते हैं तो पूरे ग्रुप में औरतें बैठी होती हैं और सब मिल के गीत वीत गाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ अकेले ही मेरी माता श्री कर रही हैं। तो हर साल ऐसा नहीं होता है, हर साल घाट वाट पे जाते ही हैं, बट इस बार आप समझ ही सकते हैं 2020 कोरोना काल है, तो इस तरीके से सूखा सूखा सब कुछ देख पा रहे हैं। और इसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो घाट पे ज़रूर गए होंगे मास्क लगाकर, और जो नियम है कोरोना के लिए वो करके गए ही होंगे, काफ़ी लोग गए होंगे, बट हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि आप जानते हैं हेल्थ इशू वगैरह। सो गाइस, जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे DSLR कैमरा को अक्षत ने ले लिया है। अब अक्षत आज कैमरा मैन की भूमिका में है। अक्षत, आर यू एंजॉयिंग? सो डू This is your camera? Yes. So do you know how to use it? Yes. That's great. Keep using, keep clicking photos. What happens after pressing these 2 buttons? Okay, don't press any button if you don't know. Don't do that. Very good. So you have learned finally how to click. Wait, yeah, click. Very good. Superb. Now let it be. Come. देख सकते हैं यहाँ पर ये सूप है जो कि फ्रूट से भरा हुआ है। ये देखिए, 1 सूप, 2 सूप, 3 सूप, देख सकते हैं आप। और ये है वो टोकरी। सो गाइज, ये भी एक विधि है कि नहाना पड़ता है। कम और फिर से आराम से बैठ के। सो अब जैसा कि देख पा रहे हैं कि मेरी माता श्री अब इस पॉन्ड में उतर रही हैं। सही से मम्मी? तो ये कुछ नियम विधि होने वाला है, देख लीजिए। देखिए, सिंदूर लगाया जाता है नाक से लेकर माथे तक, ये यहाँ तक, मांग तक, ये है नियम। मटर भी
अभी उस समय तक इन्हें खड़े रहना है जब तक कि सूरज डूब ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि बादल आकाश में होते हैं तो दिखता नहीं कि सूरज कब डूब रहा है, तो कई बार टाइम देखना पड़ता है कि अच्छा सूरज डूबने का समय क्या है, उस समय तक भी वैसे भी किया जाता है। नहीं तो कई बार दिख ही जाता है, सूरज डूबते हुए दिख जाते हैं। सो गाइस, आपने देखा कि संध्या अर्घ हो चुका है और कि डूबते हुए सूरज को जो अर्घ दिया जाता है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये दौरा मुझे यहाँ से उठाना है, अपने सर पे इसको रखना है और फिर घर तक का सफ़र तय करना है दोस्तों। और कल सुबह जल्दी जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग आना है और फिर उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद ये व्रत कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो मैं अब ये प्रोसेस शुरू करता हूँ और घर पे जाता हूँ, फिर कल मिलते हैं गाइस। हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो ये 4th डे है दोस्तों, छठ पूजा का चौथा दिन और आखिरी दिन। आज सुबह सुबह हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जो घाट बना हुआ है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरी माता श्री, माई वाइफ इज़ देयर, माई सन इज़ देयर, माई फादर इज़ देयर। तो अब उगते हुए सूरज की आज पूजा की जाती है सुबह सुबह। ओके, तो बहुत जल्दी हम आ चुके हैं। हालांकि गांव है इसलिए सब कुछ अभी साफ दिख रहा होगा, शहरों में अभी अंधेरा ही रहता है। तो अब कुछ देर बाद मेरी माता श्री उस तालाब में प्रवेश करेंगी और पूर्व दिशा की ओर रहेंगी, जहां वो उगते हुए सूरज को अर्घ दे सके। और वही प्रक्रिया निभाई जाएगी जो आपने शाम वाले में देखा है, डूबते सूरज का जो देखा है। तो बस सारी तैयारी चल रही है, गाना वाना कंप्लीट करके अभी वो पानी में उतरने वाली है। अक्षत लगा हुआ है। So guys, you can see the sun behind me. Can you see? Yes, the sun behind me. Actually the sunrise time was
6:11 6:11 का समय था सनराइज़ का, बट 6:30 बजे सनराइज़ हुआ है। तो छठ व्रत जो है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से ये दौरा लेकर के मुझे घर जाना है और फिर वहाँ पर ये प्रसाद खाया जाएगा, जो ठेकुआ है, खजूरी है, केला है, ये सब प्रसाद खाया जाएगा और प्रसाद को बांटा जाएगा। तो यही था छठ पूजा, जो कि 4 दिन का होता है दोस्तों। तो अब यहाँ से मैं बस दौरा लेकर निकलने ही वाला हूँ दोस्तों। ये बद्धी है, इसे बोलते हैं बद्धी। ये दिया जाता है पहनने के लिए, पहनाया जाता है। तो मेरी माता श्री मेरी वाइफ को बद्धी पहना रही हैं। अक्षत, तो ये दिया जा रहा है। ये खा के कर दो। ये खाना है यहाँ पर। So guys, this is called khajuri, you can call it ठेकुआ. So I'm going to eat my prasad. Come back. So guys, तो छठ पूजा कंप्लीट हो चुका है और एक नियम है कि आपको प्रसाद वहीं पे घाट पे ही प्रसाद खा करके और फिर जाना है। तो प्रसाद वगैरह हम सब खा चुके हैं, अब बस मुझे वो दौरा उठाना है और निकलना है। तो मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में गाइस। टिल देन टेक केयर। जय छठ माँ।